Good evening, everyone. Today we have arranged a session in which speaker is Mr. Jatin Sathe sir, and the topic is livelihood opportunities in rural and tribal India, experience of BAIF. So I request Mirza sir to please take the next slide. Okay, so before we start, I first of all again welcome you all for the Alumni Advisor Hub, RAHA, and Global Association for Corporate Services, GACS. But before we start, I would like to request some of the instructions to be followed by you, out of which one is to switch off your camera for better reception. And you please feel free to ask any of the questions, and we'll also discuss the same with speaker after the talk. And we'll try to accommodate maximum questions, and the session will run from 5 to 6, but if due to any technical issue, if it gets interrupted, then please join again. So I would like to welcome our today's speaker, Mr. Jatin Sathe, who is an agronomist, a regional officer in BAIF Development Research Foundation. So I'll just quickly brief about what is exactly BAIF. So BAIF is one of the largest non-profit organizations in India, which is working with local communities and stakeholders in over 85,000 villages in 13 states of India. For the past 53 years, they have been developing sustainable livelihoods by applying technology and research to farming as well as livestock to raise productivity, conserve natural resources, and promote education as well as health. So I would like to talk a few words about the speaker and give a short introduction about him. So Mr. Jatin Sathe has pursued his BSc in horticulture, and he is right now working as a regional officer in BAIF Development Research Foundation. He has also worked at tribal and rural area of Nashik region, which includes 4 districts and 14 blocks since the last 25 years. He has tremendous experience in the field of rural and tribal development field, especially in components like livelihood development, natural resource management, livestock development, quality education people's organization, quality of life people's organization, documentation and extension, research coordination, and many other prominent fields. So Mr. Jatin Sathe is presently working at Nashik region and handling different CSR, NABARD, and government other projects. Sir, we are really very lucky to have you as today's speaker, and I now hand it over to Mr. Jatin Sathe. सर्वांना नमस्ते. आत्ताच साक्षी मॅडमनी ओळख करून दिल्याप्रमाणे बायफ ही संस्था गेली 53 वर्ष ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अहोरात्र काम करत आहे. सन 1967 साली एका ध्येयवेड्या माणसाने या संस्थेची स्थापना केली. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते गुजरात या राज्यातून होते, परंतु स्थापना त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात या संस्थेची केली. उरळी कांचन हे ठिकाण संस्थेच्या स्थापनेचं होतं. त्याच्या मागची एक थोडक्यात ओळख देतो की महात्मा गांधीजी आणि त्यांच्याबरोबर विनोबा भावे, मणिभाई देसाई हे प्रवास करत होते, आणि रेल्वेत ज्यावेळेस ग्रामीण भागाच्या विकासाचा विषय झाला त्यावेळेस डॉक्टर मणिभाई देसाईंना गांधीजी आणि त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या महान हस्तींनी सांगितलं की तुला जर खरंच ह्या देशाबद्दल प्रेम असेल, आदर असेल आणि गावचा विकास व्हावा असं वाटत असेल तर पुढचं स्टेशन जे येईल तिथे तू उतर आणि तुझ्या कार्याला सुरुवात कर. त्यावेळेची लोक ध्येयवेडी होती, विचारवंत होती. डॉक्टर मणिभाई देसाई त्या स्टेशनवर उतरले. ते उरळी कांचन होतं. ते उरळी कांचन हे स्वतःचं गाव मानून त्यांनी तिथं कामाला सुरुवात केली. जतिन सर, हाँ सर, can I request to please talk in Hindi or English, because we have some of the participants who are from other states than Maharashtra. From GSS. It will be really great if you don't mind. Thank you, sir. Yes. तो इस प्रकार से डॉक्टर मणिभाई देसाई जी ने बायफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया. बायफ का फुल फॉर्म होता है भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन. जैसे कि डॉक्टर मणिभाई देसाई जी को 1967 में उरली कांचन में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का अवसर मिला. उन्होंने वहां से ग्रामीण विकास में काफी सारे काम करने की कोशिश की, और आज तक अगर ये देश में संस्था का काम देखा जाए तो 18 स्टेट में हमारा अभी प्रेजेंट है.
और करीबन 2 करोड़ फैमिलीज को हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे सके हैं। तो उसके बारे में आज का जो सेशन है उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको डॉक्टर मणिभाई देसाई ने 1967 में फॉर्म किया था उर्ली कांचन में, जहाँ की कोई सुविधा नहीं थी उस गांव में। उस गांव में उतर के उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और आज तक देखा जाए तो बायफ साउथ एशिया में सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल और ट्राइबल डेवलपमेंट में काम करता है। लाइवलीहुड के मॉडल्स अगर देखेंगे हम, ओवरऑल कंट्री जहां पे बायफ का बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, खास तौर से रूरल और ट्राइबल इकोनॉमी में, तो उसमें सबसे पहला मॉडल अगर बायफ ने दिया है देश को तो है ऑर्चर्ड और ट्री बेस्ड फार्मिंग का, जिसको वाड़ी कहा जाता है। बेसिकली ये मॉडल की शुरुआत गुजरात से हुई थी 1967 में ही। तो मनी भाई जी जब उनके गांव की तरफ गए थे वाजदा में, तो वहां के ट्राइबल लोगों ने पूछा उनको कि हम लोग दूसरों के खेत में काम करने जाते हैं, जहाँ सी साइड है वहां पर ऑर्चर्ड के खासकर सपोटा चिकू उसको बोलते हैं, उसके गार्डन है, उसमें हम काम करते हैं मजदूरी का, क्यों ना हम हमारे खुद की वाड़ी या ऑर्चर्ड का प्लांटेशन करें। उसको लेके डॉक्टर मणिभाई देसाई ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया और उसमें कैशनट है, मैंगो है और आंवला है, उस टाइप के प्लांटेशन उस समय किए थे लगभग 50 साल पहले। तो वो मॉडल वहां पे बॉर्न हुआ गुजरात में, और मुझे ये बताने में खुशी होती है कि ये मॉडल ने करीबन ओवर 20 लाख फैमिलीज को सस्टेनेबल लाइवलीहुड आज तक देश में दिया है, और नाबार्ड जैसे बैंक ने भी उसको नेशनल लेवल का मॉडल डिक्लेयर किया है। देन सेकेंड मॉडल जो काफी सक्सेस पाया है हमारा पूरे नेशन में, वो फ्लोरिकल्चर का मॉडल है, जिसमें हमने जास्मिन यानी कि उसको मोगरा भी बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में, जास्मिन कल्टीवेशन, गोल्डन साफा और बाकी सब जो भी एरिया वाइज जो फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं, उसका एक अलग सा मॉडल अपने इस देश को दिया है। उसके बारे में आगे जाके भी हम जिक्र करेंगे। थर्ड जो मॉडल बायफ ने पूरे नेशन को दिया वो है एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, जो कि बंजर भूमि या वेस्टलैंड काफी देश में हमारे बहुत सारी है, राजस्थान या बाकी कई सारे स्टेट का हम जिक्र करेंगे, तो वहां पे वेस्टलैंड काफी है। तो उसको कैसे कन्वर्ट करे लाइवलीहुड में, उसको कैसे कन्वर्ट करे अलग अलग क्रॉप्स के लेने में, उसको लेके एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल काफी सक्सेस कर पाए हम लोग। और फोर्थ जो मॉडल है जिसके लिए बायफ को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो डेयरी फार्मिंग का है। जो डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट किया था डॉक्टर मणिभाई देसाई ने उर्ली कांचन में, मुझे ये बताने में काफी खुशी होती है कि ये पूरे देश को फख्र करने वाली बात है कि जो उर्ली कांचन जहां बायफ की शुरुआत हुई थी, वहां पर एक सेंट्रल रिसर्च स्टेशन बनाया गया है, और वो एक देश का काफी जाना माना सेंट्रल रिसर्च स्टेशन है, वो जहां पर एनिमल हस्बेंड्री का रिसर्च होता है। और वहां पे नेशन में 64 सीमेंट फ्रोजन लैब है, उसमें से सबसे टॉप वाली सीमेंट फ्रोजन लैब उर्ली कांचन ही है, जो डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छा काम कर रही है। वहां से सीमेंट, नाइट्रोजन ये सब पैदा होके पूरे देश के कोने कोने में जाता है। तो ये डेयरी फार्मिंग का मॉडल हम लोग लेके जाते हैं लोगों तक। कैटल ब्रीडिंग सेंटर, कैटल डेवलपमेंट सेंटर इसका मीनिंग होता है सीडीसी का। तो सीडीसी द्वारा हम लोग डोर टू डोर सर्विस देते हैं, ऐसा नहीं कि किसानों को हमारे पास आना पड़ता है। तो डेयरी फार्मिंग के बारे में भी आगे जाके हम जिक्र करेंगे। देन गोट फार्मिंग का एक अलग मॉडल, जो बहुत सारे लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके यहाँ ज्यादा फार्म होता नहीं, लैंडलेस वो होते हैं, तो उनके लिए गोट फार्मिंग का अच्छा मॉडल बायफ ने डिजाइन करके उसको भी लॉन्च करके कई सारे गरीब लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया है। देन आगे जो मॉडल बायफ ने डेवलप करने की कोशिश की वो एक्वा फार्मिंग का। हम लोग देखते हैं कि देश में कई सारे तालाब है, कई सारे गांव में जिसको बोड़ी कहते हैं या तालाब कहते हैं, फार्म पॉन्ड कहते हैं, बहुत सारे बनाए गए, लेकिन सही मायने में उसका हम कितना यूटिलाइजेशन करते हैं लाइवलीहुड के लिए, इसलिए बायफ ने उसके ऊपर भी फोकस करके एक्वा फार्मिंग का बहुत बढ़िया मॉडल पूरे देश में बनाया है। ज्यादातर कर्नाटक या साउथ वाले स्टेट है, वहां पे ज्यादा एक्वा फार्मिंग का मॉडल हमारा चलता है। देन जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में अभी जिक्र हो रही है, चर्चा हो रही है, वो जीन बैंक का मॉडल। अगर किसको भी पता चलेगा कि
ये भी कोई मॉडल होता है क्या लाइवलीहुड का, लेकिन मुझे बताने में खुशी होती है कि जिस एरिया को मैं लीड करता हूँ, जिस रीजन को मैं लीड करता हूँ, उसी एरिया से जिन बैंक का मॉडल आता है। जिन बैंक यानी कि जो ट्रेडिशनल सीड है हमारे, उसको हमने कंजर्व करके रखा है। मुझे गर्व होता है आपको बताने में कि और 600 ट्रेडिशनल जो सीड्स है उसको हमने कंजर्व किया है। और आपको पता ही होगा कि जो हाल ही में पद्मश्री जिनको मिला हो, मिस राहीबाई सोमा भूपेरे, वो हमारे ब्लॉक से ही बिलोंग करती है, और उनको उनकी खेतों से लेके इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में जो भी उनके राह में मैं उनके साथ दे सका, उसका भी मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि उनके साथ मैं रह सका। तो जिन बैंक के मॉडल के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। देन माइक्रो वाटरशेड मॉडल बायफ ने डेवलप किए पूरे देश में। कई सारी बंजर भूमि होती है, उसको छोड़ के लोग फिर शहरों में जाते हैं, वहां बसते हैं, वहां छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी गंवा लेते हैं। लेकिन बायफ ने ऐसा एक मॉडल डेवलप किया है कि जो वेस्ट लैंड है, जो बैरल लैंड है, उसको कल्टिवेबल करके कैसे लोगों को रोजगार दिया है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। देन इम्प्रूव्ड फार्मिंग का मॉडल कई सारे देश के हिस्सों में हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते रहते लोग, उसमें थोड़ा भी मैकेनिज्म या थोड़ा भी कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते। तो उसके ऊपर जिक्र करके बायफ ने बहुत अच्छे इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर के मॉडल बना के कई सारे क्रॉप में उसका यील्ड बढ़ाया है, उनकी आमदनी बढ़ाई है। ये भी आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट मॉडल है लैंडलेस प्रोग्राम। कई सारे गरीब लोग होते हैं गांव में जिनके पास लैंड नहीं होती, तो उनको हम ऐसे ही छोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर दूसरे गांव में जाएंगे, सिटीज में जाके वहां रोजगारी ढूंढेंगे, वहां जाके वो स्लम को और बढ़ाएंगे। तो उसके ऊपर भी बायफ ने फोकस किया है, उसको हम रूरल नॉन फार्म सेक्टर कहते हैं। उसको भी काफी बढ़िया तरीके से आगे लेके गया है बायफ। देन ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा काम देश में भी चल रहा है, वैसे बायफ में भी चल रहा है। मुझे ये बताने में खुशी होती है कि उसका एक बहुत सारे क्लस्टर मैंने खुद नासिक रीजन में बनाए हैं। जो ट्राइबल फार्मर्स है, बाय डिफॉल्ट उनके पास ऑर्गेनिक ही होता है, तो उसको बस एक टैग में होता है, तो उसका सर्टिफिकेशन और उसका मार्केटिंग, उसका फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, इसके सब के बारे में बायफ काफी डीपली सोचता है और उसके लिए काम करता है। और एक मॉडल जो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, हालांकि हमारे एरिया में उसका ज्यादा प्रभाव है, काम भी चल रहा है, वो है बैकयार्ड पोल्ट्री। तो बैकयार्ड पोल्ट्री के हम देखेंगे तो बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म करने वाले लोग भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जिनका कैपेसिटी खाली 50 बर्ड या 100 बर्ड करने का है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या मॉडल हो सकता है। तो उसका एक अलग मॉडल हमने बनाया है, उसके बारे में भी हम आगे जाके जिक्र करेंगे। देन बी कीपिंग का वैल्यू सबको पता है कि अगर बीस में रहेंगे तो ये लोग भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ये खेती भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बी कीपिंग के ऊपर भी बहुत फोकस करता है बायफ, और वो भी लाइवलीहुड का सोर्स कैसा बन सकता है उसके लिए भी बायफ के काफी सारे प्रयास रहे। देन फॉरेस्ट फूड प्रोडक्शन बहुत होता है ट्राइबल एरिया में, लेकिन उसका कलेक्टिव मार्केटिंग या उसका कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए टेढ़ा होगा या बेड़ा होगा, मोहा या चारोली जैसे फॉरेस्ट्री का प्रोड्यूस आता है, तो उसका एक कलेक्टिव मार्केटिंग का एक सिस्टम बायफ ने बिठाने की कोशिश की है। ये भी एक हमारा लाइवलीहुड का मॉडल है। थोड़ा आगे लेके जाएंगे इस सभी सब्जेक्ट को। सबसे पहले हम देखेंगे कि वार्डी या ऑर्चर्ड डेवलपमेंट का क्या मॉडल है। आप सब लोग देखते होंगे शेयर स्क्रीन को, एक बंजर भूमि है, उसमें गरीब किसान गड्ढे निकाल के उसमें देख रहा है कि ये बराबर है क्या, साइज में बराबर है क्या। तो ऐसे हजारों हेक्टर पे जो बंजर और बैरन लैंड थी, उसके ऊपर ऑर्चर्ड का प्लांटेशन करके बायफ ने ऑन एन एवरेज 60-70,000, ये ड्राई लैंड में आता है मॉडल, उसमें बारिश जाने के बाद इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं होता, वैसे जमीन पे पर एकड़ 60-70 हजार रुपए तक नेट इनकम उनको सस्टेनेबली मिलेगा। इसका एक मॉडल डिजाइन किया है। उसमें फर्क यही है कि बॉर्डर पे फॉरेस्ट्री का भी प्लांटेशन हम लोग करते हैं, ताकि आगे जाके बायोमास रिसाइकलिंग होगा या जोर का विंड होगा या ज्यादा सनलाइट होगी तो उसको कंट्रोल करने में एक फॉरेस्ट्री का बड़ा सहयोग रहता है। आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रीन में गरीब किसान है और उन्होंने एक वाड़ी लगाई है।
जो बंजर भूमि है, टीप स्लोप पे वाड़ी लगाई गई है। ऐसे हजारों एकड़ पे वाड़ी के प्लॉट बायफ ने डेवलप करके सस्टेनेबल लाइवलीहुड लोगों को दिया है। और ये करने के बाद मुझे ये बताने में खुशी होती है कि गुजरात का एरिया होगा या फिर जवाहर, वाड़ा, विक्रमगढ़ जो मुंबई के नजदीक आता है, वो सभी एरिया से जो सीजनल माइग्रेशन होता था वो 100% स्टॉप कर दिया है हमने, बिकॉज ऑफ वाड़ी मॉडल। आप देख रहे होंगे कि किसान किस प्रकार से अपने खेत में लगा हुआ है, कैसा वो काम अपने खेत में कर रहा है। जो बंजर भूमि है उसको छोड़ के वो कई शहरों में बस गया था, वहां काफी हालात में वो जिंदगी बिता रहा था, उसको फिर से हमने गांव में खेत में खलिहान में लाके उसको उनका लाइवलीहुड दिया है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो टीक का यानी कि साग का प्लांटेशन है बॉर्डर पे और उसके अंदर वाड़ी है। इस टाइप का हमारे वाड़ी का मॉडल रहता है, उसका एक फोटोग्राफ से। देन आप देख रहे हैं कि बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ किसान जो ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं, वो लोग कितने मैंगो के ट्रीज दिखा रहे हैं, जो वाड़ी में उनके फल लगे हैं उसको बेच के उनका अभी जो भी लाइवलीहुड है वो ठीक से चल रहा है। और बाजू में आप देख रहे हैं कि कैशोनट जो खाली केरल में होता था या फिर कोकण में होता था, मुझे अभी बताने में खुशी होती है कि हम उसको विदर्भ में भी लेके गए इस मॉडल को, और देश के कई सारे हिस्सों में भी वाड़ी का मॉडल जैसे ही जो भी क्रॉप सेट होते हैं उस प्रकार से हमने लगवा दिए हैं। देन आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव में बैठ के ताश खेलते या फिर दूसरा कोई काम नहीं रहता उनको हाथ में, तो बायफ ने हर एक के हाथ को काम देने की कोशिश की है गांव गांव में जाके, और खुद लोग जाके काम करते हैं अपने खेत में। ये जो मॉडल दिख रहे हैं आप, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम किया है लोगों ने, और जितना भी मिट्टी पौधे के बगल में डाल देंगे उतना पौधा अच्छा होता है। ये थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई देगा। ये वाड़ी बिल्कुल रेनफेड है, बारिश के ऊपर ही आती है। देन आप देख रहे हैं कि गावा का गार्डन बना है, खाली 1.5 साल का ये गार्डन है और उसमें यील्ड आना शुरू हो गया है, जिसके ऊपर उनका गरीब परिवार का लाइवलीहुड डिपेंड है। देन आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड एप्पल का ग्रेडिंग कर रहा है एक फैमिली, इसको स्टेट लेवल के कई अवार्ड है। इस फार्मर को जिसके पास खाली 1.5 एकड़ का जमीन था, वो भी बंजर था, उसको हम लोगों ने तब्दील किया कि वो पूरा कल्टीवेट हो जाए और वे वाड़ी के फार्मिंग में आ जाए। तो ड्राईलैंड का एक काफी अच्छा मॉडल हमने डिजाइन किया है, जो नंदुरबार रीजन और बाकी जहाँ बारिश कम होता है उस रीजन में भी हमने ये मॉडल लेके गए और वो काफी सक्सेस हुआ है। कम खर्चे में वाड़ी हम खड़ी कर सकते हैं। ये यूसुफ पीर मोहम्मद शेख करके फार्मर है, जिसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग यील्ड आता है कस्टर्ड एप्पल का। उन्होंने कई सारे टेक्निक्स एडॉप्ट किए उस गार्डन में, जैसे प्रूनिंग है, ग्रीस का एप्लीकेशन होगा रूट स्टेम्स पे, या स्प्रेइंग का उनका एक टाइम रहता है, वो सब फॉलो करके उन्होंने हायर यील्ड देने का कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम पे है। वो काफी चर्चा में रहता है ये फार्मर, उसका एक फोटोग्राफ्स है। देन दूसरा जो मॉडल मैंने आपको बताया जिसका जिक्र किया कि फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर मॉडल में हम लोग बहुत बड़ा नहीं सोचते, छोटा मॉडल जो 5 आवर से लेकर 10 आवर तक उतना ही क्रॉप हम करते हैं, अलग अलग जैसी सुटेबल कंडीशन हमको पाई जाएंगी उस प्रकार का मॉडल हम डिजाइन करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि स्मॉल पॉट है रोज का, जो ग्लैडिएटर करके वैरायटी होती है वो लगाई है किसान ने, और अच्छी आमदनी उनको हर महीने में 5-6 हजार रुपये वो कमाता है, उसका वो साइड इनकम है। ये एस्टर का कल्टीवेशन है, उसका सुपरविजन चल रहा है, उसका फाइनल स्टेज में है एस्टर। ये 5-10 घंटे में भी करेगा एक आध किसान गरीब, उसको दिवाली या बड़े बड़े त्योहार आते हैं दशहरे में से, उस त्योहार में अगर ये फ्लावर जाते हैं तो 40-50 हजार रुपए उनको आमदनी होती है, नेट प्रॉफिट होता है विदिन 10 आवर लैंड। तो ये बहुत बढ़िया मॉडल जिसको हम कई सारे किसानों तक लेके गए हैं। देन एक क्राइसेंथेमम है, उसका भी फार्मिंग किया जाता है कई सारे पॉकेट्स में, उसको भी काफी अच्छा मार्केट रहता है पूरे देश में जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ काफी अच्छा रेट लेता है। फ्लावर सीजनल फ्लावर है, फिर भी उसका यील्ड भी बहुत बढ़िया रहता है। कई बार तो हाफ एकड़ में 3 लाख या 4 लाख रुपए तक के लोग कमा कर ये अपना सस्टेनेबल लाइवलीहुड कर लेते हैं। देन जैस्मिन कल्टीवेशन का एक मॉडल हमने डेवलप किया है, 2 आवर से लेके 10 आवर हाफ एकड़ तक लोग इसमें कल्टीवेट करते हैं।
और मुंबई के अगल बगल में फार्मिंग जवार में एक क्लस्टर है हमारे, जहाँ पे 5000 फार्मर्स जास्मिन कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ गल्फ तक उसका मटेरियल जाता है, उसका मार्केटिंग होता है, और कई सारी अच्छी आमदनी है गरीब किसानों को, जो बाहर गांव में जाके उनका लाइवलीहुड का सोर्स देखते थे, वो अभी गांव में अपने खेत खलियान में काम करके वो लाइवलीहुड कमाते हैं। देन एग्रो फॉरेस्ट्री का कुछ मॉडल्स की तस्वीर है, जिसमें बाम्बू हम लोग प्रमोट किए हैं, जो टॉक्साई वैरायटी है जिसका ग्रोथ काफी बढ़िया रहता है। ये मेरे हिसाब से 1 साल के ट्रीज है जिसका फोटोग्राफ्स है, तो काफी अच्छे हैं और वो एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं। तो उसका भी जो वेस्टलैंड बहुत सारी पड़ी है हमारे पास, तो बाम्बू का कल्टीवेशन हम लोगों ने करने का सिखाया लोगों को, उसका कटिंग से कैसे करना, आफ्टर केयर कैसे करना, इसके बारे में भी हम लोग टेक्निकली उनको सस्टेन करते हैं। देन ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, कार्बी, जिसको जंगल की रानी कहा जाता है। अगर ये जंगल की रानी अगर पूरी तरह से लोग उसको हटा देंगे तो मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े डैम्स है सह्याद्री घाट रीजन में, वो हमेशा के लिए वहां की बारिश चली जाएंगी। इसलिए बायर इसके ऊपर काफी जोर दे के काम कर रहा है कि कार्बी को कैसे भी करके हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि टिप स्लोप पे, वेस्टलैंड पे काफी अच्छी तरह से आ सकती है। इसके लिए कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, फ्री में आ जाता है। बस उसका सीड, उसका लाइफ स्पैन होता है 7-8 साल का, तो 8वें साल में सीड दे के वो उसका लाइफ खत्म हो जाता है। तो वो सीड अगर पकड़ के हम कहाँ भी बैरल लैंड में फेंक देंगे तो आज एक घना जंगल तैयार होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो वायप की टीम ने बनाया था एक गाँव में, 5 एकड़ के गाँव है भंडारा रीजन में। और देख रहे हैं आप कि अगर ये फॉरेस्ट्री अगर क्रॉप्स के बगल में रहेगी, बंड्स पे रहेंगी, फार्म बंड पे, तो क्रॉप भी बहुत बढ़िया आता है। छोटे जो किसान होते हैं उनके खेत भी बहुत छोटे होते हैं, तो उस किसान के फार्म बंड पे ये कार्बी का कल्टीवेशन करके हमने जो बायोमास रिसाइकलिंग का मॉडल है वो बना के कई सारे लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया है। इसलिए फॉरेस्ट्री में कार्बी का काफी इंपॉर्टेंस है। और ये कार्बी का स्टिक्स आज का रेट अगर हम देखेंगे तो कार्बी का 15 रुपीज में एक स्टिक आता है, और 1 हेक्टेयर में करीबन 2.5 लाख कार्बी का वो स्टिक्स निकल के आता है विद इन 7 ईयर पीरियड। तो ये काफी अच्छा सस्टेनेबल मॉडल है जो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग करते हैं, उसको हम अभी काफी जगह पर एक्सटेंड कर रहे हैं। ये सह्याद्री घाट रीजन में कहां पर भी आ सकता है कार्बी। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी आए हैं, ये आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये जो भी हमने प्रयास किए कार्बी बचाने के लिए ट्राइबल्स लोगों को इकट्ठा करके, उसका एक आर्टिकल छपा था ये लॉकडाउन पीरियड में, उसका ये तस्वीर है। दिन ये दूसरा है जो कार्बी का ट्राइबल लोगों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। कार्बी नहीं होंगे तो ये ट्राइबल लोगों को बहुत ही परेशानी हो सकती है, क्योंकि हनीबीज या बाकी बहुत सारे जो प्लस में काम करने वाले कीड़े मकोड़े वो कार्बी के साथ ही जंगल में रहते हैं। कार्बी चली जाएंगे तो हनीबीज भी चला जाएगा, वो सब चला जाएगा। और कार्बी के फ्लावर के स्टेज में हनी इतना कलेक्ट करता है ये बीज, तो उसका भी मार्केटिंग या उसको अगर हम बेचेंगे तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत होते हैं, और वो टनों में आता है, वो केजी में टनों में उसका पैदाश होता है। उसका भी हम लाइवलीहुड मॉडल बना के आगे लेके गए उसको। देन एग्रो फॉरेस्ट्री का एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक भिंडी करके एक ट्री होता है जो बंड पे हम लगा सकते हैं। जिस बंड पे लेके किसान बहुत सारे झगड़े करते हैं, कोर्ट मैटर चलते हैं, तो बंड पे हमने कई सारे बंड्स पे भिंडी का स्टिक्स लगा दिया, उसको कटिंग्स पे आता है। तो विद इन 3 और 4 ईयर उसका हम लकड़ी काट के उसको अच्छा मार्केट मिलता है। ये धराड़ी करके एक हमारा फार्मर है, उसका एक सक्सेस स्टोरी है। तो साल में 50,000 रुपए कमाता है ऐसा स्टिक्स कलेक्ट करके। तो ये भी बहुत बढ़िया मॉडल है, कहाँ पर भी हो सकता है भिंडी अक्रॉस इंडिया। उसका भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें काफी सस्टेनेबल इनकम उनको मिलता है, जितना खेत में नहीं मिलता उसका उनको बंड पे मिलता है। इसका एक स्टोरी हमने पब्लिश किया था इसमें। देन हिरडा करके जो फॉरेस्ट्री का जो सह्याद्री के घाट रीजन में हजारों ट्राइबल लोगों का जीने का सहारा है। फिलहाल उसको कट करते जा रहे लोग या फॉरेस्ट के लोग भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो बायर सोच रहा है कि उसका कल्टीवेशन बढ़ाए, उसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर उसको और कुछ टिश्यू में ला सकते हैं, कैसी टेक्नोलॉजी लाके उसको हिरडा को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हिरडा भी एक एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल में हमारा एम पौधा है
जो काफी अच्छा इनकम या यील्ड लोगों को हर साल देता है। जो किसान जिसके ऊपर ये स्टोरी लिखी थी मैंने, उसका साल में वो 50-60 हजार रुपए खाली ये खेड़ा के प्रोडक्शन से, वो सीड बेच के वो कमाता है। और गवर्नमेंट भी उसको काफी अच्छे लॉज दिया है, काफी अच्छा प्रोटेक्शन भी दिया है, मार्केटिंग भी करता है इसका। देन लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में जिसका मैंने जिक्र किया कि पूरे वर्ल्ड में बाइक को जाना जाता है, तो ये कुछ मॉडल्स है हमारे, जैसे कि डांगी एक पैदाश होती है, जो डांग जो ब्लॉक है गुजरात का, वहां से लेके नासिक के ऊपर जो भी बगल में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का कोई पार्ट आता है, वो पूरा डांग में कहा जाता है। डांग ये ऐसी एक ब्रीड है जिसका मिल्क या घी काफी महंगा बेचा जाता है, तो उसका भी एक मॉडल हमने बनाया है। इसका एक सॉर्टेड सीमेंट भी हम अभी लॉन्च कर रहे हैं बाहर। तो हर एक किसान के दौर में जाके जिसका भी कॉल आएगा, तो सीडीसी हमारा घर में जाके इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सर्विस देता है, ताकि आपको ताज्जुब होगा कि एक गुलाब की जोड़ी जो होती है उसका 2 लाख रुपए तक उसका इनकम होता है 1-2 साल में। तो ये काफी अच्छा लाइवलीहुड सोर्स है कई सारे घरों का। तो उसको हम और तगड़ा करने जा रहे हैं। तो कई सारे कैटल ब्रीडिंग सेंटर्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा उसको हमने बढ़ाया है, और ये प्रजाति को हमने प्रोटेक्ट भी किया है, कंजर्व भी किया है, और उसको बढ़ाया भी है। ये बहुत बढ़िया काम कई सारे रीजन में हमारा चल रहा है। देन क्रॉस ब्रीड काऊ है जो हाई एडिंग प्रकार में आती है। एक किसान का हमने, जैसे कि काली जी ने एक वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ कि सैकड़ों लीटर दूध उससे पैदा होता है, और कई सारे घरों में जाके उससे इनकम भी मिलता है। ऐसे करोड़ों कुटुंब है पूरे नेशन में अपने कि जो मिल्क का बिजनेस करके उसका लाइवलीहुड चलाते हैं। ये बहुत सक्सेस मॉडल है भारत का, और सबसे बेफस से चला हुआ ये मॉडल है। और इसमें और भी क्रांति होके सॉर्टेड सीमेंट भी लाए हैं हम लोग। सॉर्टेज सीमेंट का ये भी फायदा है किसानों को कि जिसको बुलक चाहिए उसको बुलक भी मिलते हैं। मेल फीमेल का जो रेशियो है जो मेंटेन करना चाहता है वो सेक्सेड सीमेंट के साथ कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी हमने किसानों के तौर पे लेके गए हैं। देन गोट फार्मिंग जिसका हमने जिक्र किया था कि बहुत गरीब किसान जिनके पास खेती नहीं होती, बहुत छोटा जमीन होता है, उनके लिए ये मॉडल काफी अच्छा है। जो साल में 1 या 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, और उसमें से उनका फैमिली अच्छा चलता है, उनका बच्चों का पढ़ाई हो सकता है, या उनका लाइवलीहुड का एक बेटर सोर्स हो सकता है। उसको हम अभी आगे भी लेके जा रहे हैं। उसका मिल्क का कैसे मार्केट करें, उसका मिल्क का कैसे पनीर या बाकी बाय प्रोडक्ट करके और भी कैसे वैल्यू एडिशन करके इन लोगों को और अच्छी आमदनी दे, इसके लिए भी प्रयास जारी है। बहुत छोटे और गरीब किसानों की यहाँ ये मॉडल चलता है, और इसमें भी हजारों लोग शामिल है। ये लाइफ स्टॉक का बहुत बढ़िया मॉडल हमारा गोट डेवलपमेंट का भी है। कई सारे किसान उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें करनी जरूरी होती है। बायो या बाकी संस्था या टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम करेगी, तो ये इसका भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके अच्छा ब्रीड जो उस्मानाबादी होगा, सानेन या ब्रूर होगा, जो करना चाहता है किसान उसको हम आगे लेके जाते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक फीडिंग स्टैंड है और ड्रिंकिंग स्टैंड है। ये 2 चीजें हमने हर एक घर में दिए है, हर एक किसान के यहाँ। काफी 2-4 हजार की ये इन्वेस्टमेंट वाली ये चीज है, लेकिन ये चीज देने से लोगों का जो मॉर्टिलिटी रेट है वो 44% से 2% तक हम डिक्रीज कर पाए। जहां 44% मॉर्टिलिटी होती थी जिस एरिया में, हमारे पास उसका स्टैटिस्टिक डाटा भी है, एनालिसिस रिपोर्ट भी है, हार्डली वहां पे 1 या 2% या मॉर्टिलिटी होती है, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कहाँ भी ये जानवर पानी पिएगा, खाना खाएगा, तो वो उसकी तबीयत खराब होने वाली। तो छोटी छोटी चीजें में हम तब्दीली लाते हैं और वो मॉडल गरीब किसानों तक लेके जाते हैं। ये भी वही पिक्चर है, ये थोड़ा क्लियर है, जो फीडिंग और ड्रिंकिंग का स्टैंड, लो कॉस्ट स्टैंड है। और मुझे ये बताने में खुशी होती कि छोटे छोटे बच्चों ने बनाया स्कूल में ये मॉडल, उसको हमने डिजाइन करके दिया था। ये सब लो कॉस्ट है, 3-4 हजार में ये सब चीजें बनती है। एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठाकर कम्युनिटी से आता है ये लड़का। वो 150 उनके पास गोट्स है, एक 25 ईयर्स ओल्ड है ये। और 20 में मैंने उनका एक आर्टिकल लिखा था, तो आर्टिकल पढ़ के कई सारे लोग मेरे से अप्रोच किया, और उनका जो भी गोट्स है वो देख के काफी खुश हुआ, और उसको बांग्लादेश में मार्केटिंग हो रहा है उनका। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाकी लोगों का भी उनके साथ टाइप करके उसको थोड़ा ट्रेनिंग देके लाइवलीहुड का, गोट फार्मिंग का,
उसको एक लीडर, अच्छे सा लीडर बना जाए कि ताकि वो सबको आगे लेके जाए। तो ये स्टोरी था जिसके ऊपर थोड़ा लॉकडाउन पीरियड में मैंने काम किया था। तो काफी अच्छा काम करता है, सोमवा करके लड़का है, तो उनके पास 150 साइज का फ्लॉक है। तो काफी इंस्पायर करता है बाकी लोगों को भी ये स्टोरी, और इसको देख के कई सारे लड़के भी आगे आए कि हमारे नौकरी गई, अभी हम शहर में नहीं रह सकते, तो हम भी गोट रेयरिंग का काम करेंगे। ये उस्मानाबादी करके ब्रीड है, जिसके ऊपर संगमनेर करके ब्रीड है, जो संगमनेर ब्लॉक है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, वो वहां पे पाई जाती है ब्रीड। इसका एक खासियत है कि उसको किड्स जब भी होते हैं ना, तो ट्विंस या थर्ड या फोर्थ होने की ज्यादा चांसेस होती है। तो ये ब्रीड में हमने कंजर्व किया है, उसका भी सीमेन निकाल के बहुत सारे किसानों तक हमने पहुंचाया है। देन एक्वा फार्मिंग का जिसका मैंने जिक्र किया कि ये मॉडल बहुत ही बढ़िया है, कि जिसको जहाँ गांव में तालाब होते, वो तालाब में कोई पानी खींचते रहते लोग अपने खेती के लिए, लेकिन उसका और भी एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है, जिसमें फिश का शीट छोड़ के, थोड़ा फीड छोड़ के काफी अच्छा आमदनी हो सकती है। तो कई सारे गांव के तालाब हमने ऐसे यूटिलाइज करके वो बूढ़ी में फिश का सीड, जिसमें रोहू, कतला, मुर्गल जैसे इंक्लूड फिश के सीड है, उसका इंट्रोडक्शन करके सैकड़ों हजारों लोगों को, नौजवानों को एक रोजगार का संधि उपलब्ध करके दिया है। एक बूढ़ी में 5-6 लाख रुपए का इनकम उनको होता है। तो ये भी एक सस्टेनेबल और अच्छा मॉडल है जो गाँव में हम लेके जा सकते हैं। जिन बैंक का मॉडल जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो ये वही जिन बैंक है जिस राय भाई को आप सब लोग जानते होंगे कि जिसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो 100 पावरफुल वुमेन्स जो वर्ल्ड में होती है, उसमें उस लिस्ट में भी है वुमेन्स का नाम आया था। कई सारे अवार्ड उनके नाम है, नारी शक्ति से भी उनको नवाजा गया, और महाराष्ट्र का कृषि भूषण जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो भी उनको दिया गया है। तो उनका जिन बैंक है, जो ट्रेडिशनल सीड है उसको कंजर्व करके हजारों लोगों को, ये हमारे ब्लॉक में आता है, करीबन 4000 फैमिलीज को हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड इस सीड बैंक की तरफ से देते हैं। जो भी न्यूट्रिशनल गार्डन का, किचन गार्डन का किट बनता है सीड का, 40 टाइप के सीड्स उसमें होते हैं, उसका अलग अलग पैकेज में हम पैक करके गांव, हर एक गांव में, घर में काम चलता है, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम चलता है वुमेन्स के। वो किट इकट्ठा करके फिर जिन बैंक में आते हैं, वहां से जितने भी ऑर्डर्स हमें अभी देश के हर एक कोने से ऑर्डर मिलते हैं। इस साल हमें 1 लाख किचन गार्डन किट के ऑर्डर मिले थे, वो हमें फुलफिल किया, और करीबन 3000 फैमिलीज को हमने उससे अच्छा रोजगार भी दिया। यही वो रहीम मौशी है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उनका खुद का एक जिन बैंक है जो बायक ने उनको डेवलप करके दिया है। उनके पास फिलहाल 250 टाइप के अलग अलग सीड है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल के सीड है, और पैडी और रागी के। वही उनके पिक्चर से अलग अलग काम करते हुए, ट्रेडिशनली वो सीड कैसे कंजर्व करते हैं वो पिक्चर में दिखाया गया है। घर के बगल में उन्होंने जो सीड लगाया है और उसको मल्टीप्लाई करने वाली उसका पिक्चर है। न्यूट्रिशनल गार्डन का मैंने जैसे जिक्र किया कि उनके हाथ में एक बकेट है और उसमें कैरेट है, और कैरेट में दिखाई दे रहा है कि अलग अलग टाइप की सब्जी है फ्रेश, जो बिना फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर के उन्होंने उगाया है। और फोर्थ पिक्चर में वो ग्रेडिंग कर रहे हैं सीड का। तो हर एक घर में ऐसा ही काम चलता है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों राई भाई है, हजारों राई भाई है, और देश में कई सारे राई भाई है। उसको आगे लेके आना है हमें, और सही तरीके से उनके नॉलेज का, उनके तजुर्बे का हमें इस्तेमाल करना है लोगों की लाइवलीहुड के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नवाजा गया है लाइवलीहुड का मॉडल है हमारा। ये कई सारी वैरायटीज है जिसको कंजर्व किया हमने, ओवर 600 पैडी और अलग अलग क्रॉप के वैरायटीज को हमने कंजर्व करके रखा है उसके कुछ एक पिक्चर से। देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट माइक्रो वाटर सेट मॉडल का मैंने जिक्र किया था। तो बंजर भूमि का कोई कमी नहीं हमारे देश में। हम अगर देखेंगे मराठवाड़ा या विदर्भ में कई सारे लैंड है तो ऐसी बंजर पड़ी हुई है। अगर उसके ऊपर टेक्निकली काम करेगा हमारा टीम तो बंड इंप्रूवमेंट करके देगा, तो जो भी बारिश आएगा तो बारिश का पानी कंजर्व होके, वो बारिश का पानी जो मॉइस्चर क्रिएट करेगा, तो मॉइस्चर के ऊपर बहुत अच्छे क्रॉप आते हैं। उसके पिक्चर्स में आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर दोनों भी पिक्चर्स मैंने दिखा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी विद इन 1 सीजन 1 रेन हमने हार्वेस्ट करके
70% क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाएगी। जिस जमीन में जानवर भी चराने के लिए लोग लेके नहीं जाते थे, उस जमीन में अभी टमाटर जैसे क्रॉप भी लेते हैं, ऑयल सीड के क्रॉप लेते हैं जिसमें ग्राउंडनट है, नाइजर है, उस टाइप ऑफ क्रॉप्स लेने शुरू हो गए जो बंजर भूमि था। तो ये भी माइक्रो लेवल का प्लान करके लोगों को लाइवलीहुड में कैसे हम व्यतीत करें, कैसे उनको बिजी रखें, उसका भी प्लान गाँव गाँव तक देखे जाना चाहिए। और मुझे लगता है बाइक ने बहुत ही बढ़िया नेशनल लेवल पे काम किया है। देन हम लोग देख रहे हैं कि छोटा पैडी लैंड है जो वेस्ट था, वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ट्रीटमेंट किया और वो पूरा हरा भरा हो गया विद इन 1 सीजन। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, जो वेस्ट लैंड है वो कल्टिवेबल कर सकते हैं। देन आप लोग देख रहे हैं कि जो बंजर भूमि है जहां पर घास भी नहीं उग रही है, तो वहां पे अच्छा पानी गैदर हुआ है, उसको स्टोर किया है और उसको ही हमने तब्दील किया है कि अलग अलग क्रॉप वहां पे किए जाए। तो बंड इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट सीजन में बिल्कुल वहां पे क्रॉप लेना शुरू कर देते हैं फार्मर्स। तो ये भी एक बढ़िया मॉडल जो बायक ने नेशन को दिया है। ये भी बिल्कुल वही पिक्चर दिखाते हैं आपको कि जहाँ पानी आएगा वहां क्रॉप भी आएगा, लोग क्रॉप करेंगे या बिजी रहेंगे खेतों के साथ, तो अलग अलग सिटीज में जाके वो उनकी रोजी रोटी नहीं खोजेंगे, वो गाँव में ही काम करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा मॉडल है। राजस्थान में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बहुत सारे स्टेट में वाटर सेट का बहुत बड़ा काम बायक ने किया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। देन इम्प्रूव्ड फार्मिंग का जो मॉडल है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये सारा टेक्निक है जो पैडी का पूरे देश में हम आगे देखे जाएंगे तो पैडी का कोई टेक्निक यूज करके लोग फार्मिंग नहीं करते। जैसे हाथ में आएंगे जितने पौधे आएंगे वो लगा देते, तो उससे जो उनका यील्ड है वो काफी कम आता है। तो वो बढ़ाने के लिए हमने लाइन सोइंग होगा या ऐसा सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, उस टाइप का टेक्निक हजारों लोगों को हमने सिखाया। और मुझे एक फख्र है, गर्व है कि ये चीजें हमने सिखाई। हम बंड पे खड़े रह के नहीं सिखाए, हम भी वो कीचड़ में गए, हम भी उनके साथ पैडी का ट्रांसप्लांटिंग किए लोगों के साथ, तब जाके टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हुई है। तो कई सारे गरीब किसान जिसका इनकम डबल हो गया ये टेक्निक देने के बाद। तो इम्प्रूव फार्मिंग की यही टेक्निक्स, छोटे छोटे टेक्निक्स लोगों को बताना है, करवा के लेना है, बाद में वो अपने आप करते रहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है जो पैडी में हमने अप्लाई किया था। SRI टेक्निक है, SRT टेक्निक है, 4 स्टेप मेथड भी गए थे। तो तीनों टेक्निक को हमने अलग अलग जगह पे इंट्रोड्यूस किया है। देन वो नर्सरी रेजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्क चल रहा है लोगों के साथ, लाइन सोइंग कैसे करना है उसको कभी सोचते ना लोग लाइन में सोइंग करने का पैडी को, लेकिन कई सारे ब्लॉक्स में बताऊंगा आपको कि वो पूरे ब्लॉक्स अभी वो लाइन सोइंग में पैडी का कल्टीवेशन करते हैं। कई सारे किसानों के फोटोग्राफ्स जो लाइन सोइंग में ग्रो करके पैडी का यील्ड लगभग डबल कर दिए। देन जिंजर कल्टीवेशन, छोटा कल्टीवेशन करेंगे लोग, लेकिन उनका आमदनी अगर डबल करना है हमें तो अलग सोच रखनी पड़ेगी। जैसे ही क्लाइमेट होगा, जैसी सॉइल होगी, जैसे ही वहां का माहौल होगा, उस प्रकार से हमें पूरी स्ट्रेटेजी बना के अलग अलग क्रॉप भी ट्राई करना पड़ेगा। तो ये क्रॉप भी बहुत महंगा विषय है और हजारों लोगों का इससे भी आमदनी बढ़ा है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर भी मूव किया है पूरा बायक, और उसके ऊपर फेद भी करता है बायक। वर्मी कंपोस्ट का एक मॉडल है लो कॉस्ट जो हजारों किसानों के घर में हमने किया है और उसका रिजल्ट भी अभी आना शुरू हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक छोटा सा एक मॉडल है जो लो कॉस्ट मॉडल है। कई सारे मॉडल गवर्नमेंट भी लॉन्च करता है, उसके ऊपर काफी पैसा भी जाता है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी रिसोर्सेस फार्मर के पास है उसको यूटिलाइज करके कैसे मॉडल्स आगे लेके जाए और कैसे लोगों को कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इनपुट्स में खेती करवाए। तो ये बहुत अच्छे मॉडल्स हमारे गांव में गए हैं। देन लैंडलेस प्रोग्राम, आप देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन्स है उनको अलग अलग टाइप के काम बायक की ओर से दिए जाते हैं, अलग अलग CSR की ओर से दिए जाते हैं। ये हमारा अपोलो टायर फाउंडेशन के साथ जो टायर है उसका एक फोटोग्राफ है जो दाल मिल चला थी वुमेन्स। अभी ये मॉडल एक्सपांड होने वाला है। ये जो मॉडल दिया था उनको हमने, उसके ऊपर वो महिलाएं ये उनका पैकिंग ग्रेडिंग का भी यूनिट बनाया उन्होंने। तो काफी सारी फैमिलीज को जो लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं, उनको ऐसे भी रोजगार के साधन बायक में उपलब्ध करके दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ टेलरिंग यूनिट्स हो गए या छोटा सा ग्रोसरी शॉप होगा, इस टाइप का भी माइक्रो प्लान करके बायक की टीम काम करके हजारों लोगों को इस प्रकार से
रोजगार उपलब्ध करके दिया है। ये छोटा घर में भी बना सकते हैं, छोटा खाने की चीज है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, ये भी हमने प्रमोट किया है कई सारे गाँव में। ये भी जनरल स्टोर का एक है। देन ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन, ये पूरे कंट्री में प्रोग्राम चल रहा है हमारा। जैसे मैंने जिक्र किया कि वर्मी कंपोस्ट होगा, बायो फर्टिलाइजर होगा, कंपोस्टिंग प्रोग्राम है, हर एक गाँव में घर में अभी जाके बसा है। उसके ऊपर कई सारे लोग उभर के आए हैं, जैसे कि अकोले ब्लॉक की जिसको फूड मदर कहा जाता है, ममता भाई भान, उसमें खोज लगा के वर्मी ब्रिकेट बनाए, जैसे यूरिया डीएपी का ब्रिकेट बनता है, प्रकार से वर्मी ब्रिकेट बना के वो वेजिटेबल में, पैडी में या किचन गार्डन में इस्तेमाल कर दिए। उस टाइप का टेक्निक में लोगों को हमने सिखाया। बाद में बहुत सारे टेक्निक जो आईपीएम में आते हैं, वो भी किसानों को सिखा के कैसे लो कॉस्ट एग्रीकल्चर किया जाता है और एड भी हम सस्टेनेबली कैसे ले सकते हैं। तो करीबन 1,500 फार्मर का एक गुट हमने यहाँ पे बनाया जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करता है, और उसका एफपीओ के साथ टाइप किया हमने, खुद का उनका वुमेन्स का एफपीओ है, उसमें वो माल चला जाता है, वहां से उसका एक्सपोर्ट होता है, उससे उनकी आमदनी डबल हो चुकी है। ये भी स्मॉल प्लॉट्स है जो कर सकते लोग, उनको प्रमोट करके बाय अपने ट्रेनिंग दे के वो बनाए हैं। सेम पिक्चर है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मॉडल है। देन एक बैकयार्ड पोल्ट्री का मॉडल जो पूरे देश में हम चला सकते हैं इसको, लेकिन इस मॉडल में एक ही दिक्कत थी कि एक बार कोई प्रोजेक्ट आके उसको सपोर्ट कर देता है, लेकिन बाद में ये जो देहात में रहने वाले, ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके जो सोर्सेस होते हैं, जैसे कि डे ओल्ड चिक्स, उनको वो लेने के लिए 150-100 किलोमीटर अगर जाना पड़ता है तो वो कभी नहीं जाएंगे। तो हमने ये हैचरी की यूनिट्स जो है वो अलग अलग छोटे छोटे गाँव में लगाया है। बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, लेकिन मुझे गर्व महसूस होता है कि ये चीजें हमने चैलेंजेस लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये मॉडल सिस्टम हो, ये गरीब लोग खुद एक हैचरी यूनिट चलाते हैं। कई सारे बड़े लोग उसको चला नहीं पाए, लेकिन हमारे गरीब लोग कई देर से वो चलाते और मेहनत लेके वो हैचरी करके फिर बाद में जो भी डे ओल्ड चिक्स आते हैं गरीब गरीब लोगों के यहाँ पे जाते हैं और वहां पे लोगों को वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड में वो तब्दील कर देते। जैसे कि आप देखेंगे ये छोटा सा एक जगह है जहाँ पे 50 या 100 बर्ड तक ही हम देते हैं, उसके ऊपर गरीब लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मॉडल हमारा 100 बर्ड का है, 100 बर्ड अगर एक बार करेंगे, ऐसे साल में 4 बार होता है, तो 10,000 रुपए उनको नेट प्रॉफिट होता है, कैसे भी करेंगे। और ये ट्राइबल बेल्ट का एक खासियत है, वहां पे मॉर्टेलिटी ज्यादा नहीं होती, हार्डली 2 या 3% ही मॉर्टेलिटी आती है वहां पे। क्लाइमेट बहुत सूट करता है इस सब एक्टिविटीज को, तो इसका स्टडी करके उसका फायदा हमारी टीम ने उठाया। कई सारे हजारों लोगों के पास से मॉडल अभी गया है। तो ये देशी बर्ड्स को हम लगाते हैं, जिसमें देशी पाथर्डी या कावेरी जैसे भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन देशी पाथर्डी और सातपुड़ी करके हमारा जो जहाँ पे काम चल रहा है सातपुड़ा बेल्ट में, वहां से भी ब्रीड हमने लाके वो भी कर दिए। तो वो लोकल ब्रीड हम कंजर्व करके उसको ये मॉडल में लाए हैं। तो ये मॉडल काफी सस्टेन है, 100 बर्ड के ऊपर एवरेज 11,500 रुपीज उनको नेट इनकम आता है, सर्वर रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये मॉडल हमने सेटअप कर दिया है। छोटी छोटी चीजें उसमें, जैसे कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार वैक्सीन कर देंगे, और वैक्सीनेशन खुद लोगों को हमने सिखाया है। ये जो गरीब गांव वाले लोग देख रहे हैं उनको वैक्सीनेशन के काम आता है। लासोडा या गंबरो जैसे 4-5 वैक्सीन अगर वो टाइमली कर देंगे और फीडिंग प्रैक्टिस को हम केयर कर देंगे, तो उसके ऊपर पोल्ट्री में ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं होती। उनका वो साइड इनकम साल भर चलता रहता है। 100 अटेम्प्ट बर्ड की 4 बैच भी लेंगे तो 40-50 हजार रुपए वैसे कमा लेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ट्राइबल बेल्ट में एनुअल इनकम किसान उनका 20 से 25 हजार रुपए तक ही होता है, उसके ऊपर होता ही नहीं। स्मॉल लैंड होता है उनके पास, एवरेज उनका लैंड होल्डिंग होता है 2.5, उसमें ज्यादा इनकम उनको होता नहीं। 20-25 हजार रुपए के ऊपर उनको साल गुजारना पड़ता है। तो उसको लेके अगर साइड इनकम बोल रहे हैं हम, तो 30-40 हजार रुपए मिल सकते हैं पोल्ट्री। तो ये मॉडल हमने कई सारे गाँव में सेट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी लोकल रिसोर्सेस है घर के सामने, ये पोल्ट्री बना के लोग उसको बढ़ा के वो बेच रहे हैं, उसको भी हम लाइन अप करके अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से उसको मार्केटिंग का लाइन अप कर रहे हैं। डे ओल्ड चिक्स या बाकी के सर्विसेज जो फीडिंग है, बाद में वैक्सीन है, ये सब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से हम लोगों को
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लो कॉस्ट ये पोल्ट्री हाउस है, जहां ज्यादा लागत आई नहीं है। 1-2-2.5 हजार में ये लो कॉस्ट कार्बी का ये हट बनाया उन्होंने, उसमें वो पोल्ट्री 100 बर्ड का एक मॉडल बनाया है, और ये बहुत ही बढ़िया और एक सिस्टम मॉडल गाँव गाँव का क्या है। तो ये जो प्रेजेंटेशन में मैंने बताया आपको कि ये सब लाइवलीहुड के बायफ ने मॉडल्स डेवलप किए हैं, और मुझे खुशी होती है कि करोड़ों लोगों तक ये मॉडल लेके जाने में हम लोग सफल रहे हैं। और ये जो काम है और भी आके चलता रहेगा ये कारवां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा स्पीडली मैंने बताया, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ने के लिए काफी समय लगता है, और ये लास्ट 25 ईयर से मैं खुद इस सभी मॉडल्स में इन्वॉल्व हूँ, और मुझे खुशी होती है कि हजारों लोग, अभी तक लाखों लोगों को मैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे पाया। उनके घर में जाके मैं उनके साथ विश्वास से रह पाया और उनको ये लाइवलीहुड का अवसर दे पाया बाइफ के माध्यम से। और यहाँ आने का मुझे मौका मिला, आपके साथ टॉक करने का बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। आपने सब लोगों ने बहुत शांति से सुन भी लिया, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन हो गए तो आप रेज कीजिए, मैं उसका दिल से जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। Thank you, Jitin sir. It was really great to see all these BAF transformations in rural and tribal area. I think मेरे को बहुत खुशी होगी सबको ये बताते हुए कि राहीबाई पोपेरे, जिनको ये साल पद्मश्री अवार्ड मिला, जिनको सीड मदर बोला जाता है, और शी इज बीन काउंटेड इन टॉप मोस्ट 100 पावरफुल वुमन in entire world, and that is also by BBC. इसमें काफी बड़ा सहभाग जितिन साठे जी कर रहा है। उन्होंने उनको पूरी दुनिया के सामने लाया। ममता बाई मांगोर जी का नाम जो लिया, फूड मदर जिनको बोला जाता है, ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने रूट लेवल पे किया है। मेरे को सबसे बड़ी खुशी आज ये हो रही है कि हमारे साथ आज ये कार्यक्रम के लिए बाबू मोरे जी है। बाबू मोरे जी का काम इतना बड़ा है कि इन्होंने ऐसे ही वाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया में, वो खुद प्राइमरी टीचर है, बट उन्होंने ये जो ये होता है ट्रांजिशन और व्हाट एवर यू कैन से, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का, उसके वजह से उनके स्कूल के ऊपर बहुत सारा ये होता था, तो उन्होंने वो पूरा स्टॉप कर दिया। ये ऐसे बहुत सारी तरकीबें यूज करके, वो फार्मिंग की तरकीबें यूज करके, मैं उनको जरूर बोलूंगा। सबसे पहले बाबूजी, इफ यू कैन अनम्यूट, आपको खुद अनम्यूट कर सकते हो। रोहित, बाबू मोरे सर को अनम्यूट करना। आपको ये हमारा प्रयास कैसे रहा बायफ का, आप जितिन जी को जानते भी होंगे। और मीन टाइम में सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके जो सवाल एक चैट सेक्शन में डाल दीजिए, हम जितिन सर को पूछेंगे। तो बाबू सर, आप 2 मिनट बात करेंगे इसके ऊपर, आपका जो आपने जो किया है, प्लस जितिन जी ने अभी जो प्रेजेंट किया, हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाबू जी। यस सर, थैंक यू सर। काले सर को मेरा बहुत बहुत सारा नमस्ते। और साठे सर जिनका नंबर मेरे पास बहुत सास्कर सर के द्वारा आया था, मगर मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। तो साठे सर, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते। मेरी आवाज है? नमस्ते सर। तो सर। हाँ जी, हाँ। तो सर, मैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर हूँ विक्रमगढ़ तालुका में, पालघर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे मेरे विलेज में जो दिक्कत थी कि जो पेरेंट्स लोग थे, वो पेरेंट्स लोग अपना चावल का काम खत्म करके दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए निकलते थे, और वो निकलते टाइम बच्चों को भी उनके साथ लेके जाते थे। और जब मैंने ये देखा कि बच्चे जब माइग्रेट होके पेरेंट के साथ बाहर जाते हैं तो उनका एजुकेशन पे बैड इफेक्ट पड़ता है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे रहे और मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पे रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने मतलब वो क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इनको रुकवा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा था, विचार कर रहा था। और तभी मेरे को खेती का दिमाग में आया कि ये लोगों को अगर मैं खेती में गाइडेंस करके यहाँ पे रुकवा सकता हूँ। तो मैंने 2016-17 में मेरे स्कूल में लगभग 35 से 40 पेरेंट्स लोगों की मीटिंग ली,
और उसमें बाहर काम को जाने के बजाय यहाँ पे खेती में अलग अलग तरह के क्रॉप करके हम लोग उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये विश्वास दिलाने में मतलब सक्सेस हो गया। और सक्सेस होने के बाद हम लोगों ने उसी साल अलग अलग तरह की सब्जियां की, पैच किया, कुछ फूल किए, और उससे सभी पेरेंट्स लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिला जो कि उनको बाहर जाके मिलता था उससे ज्यादा। तो एक वातावरण तैयार हो गया मेरे यहाँ पे। और पिछले साल मैंने मेरे पाड़े में, जहाँ पे आपको मालूम है कि कोकन एरिया में जो पाड़े होते हैं वहां पे ये लोग अपना ये आलू और कांदे के कांदा लेने के बदले उनको अपने काजू की बीज बीज देते हैं। 1 किलो कांदा लिया उनसे तो 1 किलो इसकी बीज देते हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये अपने को बंद करना है, क्योंकि कांदे का और काजू की बीज का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने मेरे पाड़े में ज्यादा तौर पे कांदे का क्रॉप लिया, जो पिछले साल मैंने 35 टन निकाला। उसके साथ करेला लिया, और फिर भिंडी ली, गवार जैसा पीक लिया, पत्ते की बहुत सारी सब्जियां ले ली। तो वो सिचुएशन ऐसा था पिछले साल, हम सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना के वक्त जो लोग बाहर काम के लिए गए थे तो वो लोगों को बीच में काम छोड़ के वापस आना पड़ा। तो मेरे टीम में जितने भी 40-50 किसान लोग थे, तो ये लोगों को कोरोना के दौर में भी खुद का काम था, खुद की आमदनी उनकी चालू थी, और बहुत उसका अच्छा रिजल्ट गया। और अभी वो देख के आजू बाजू के भी लोग अभी ये खेती करने के लिए तैयार हो रहे। साटे सर को मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जवाहर के बायब के तरफ से भी एक 12-15 किसान लोगों की टीम का भी वो भी काम चालू है उनका अच्छे से। तो मतलब ये बात है कि अगर लोगों को हम बता सकते, पहले तो क्या था कि चावल के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, ये बात थी सभी लोगों के दिमाग में। मगर जब हम लोगों ने उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया और उसके द्वारा जब लोग करने लगे, तो आज लगभग 70-80 लोग ये प्रोजेक्ट में है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आज ही मैं सर लगभग 3 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके आया। तो ये साल अपने को क्या करना है क्या नहीं, ठिबक सिंचन जैसी कुछ आधुनिक खेती की भी चीजें हम ये साल यूज करने वाले हैं। और क्या है कि अपने को ये मतलब ऑर्गेनिक खेती के तरफ मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो जैसा कि अपना ये क्रूमी कंपोस्ट होता है या गांडुल खत होता है, तो इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से 50 जो प्लांट है ये मैंने अभी स्टार्ट करने वाले हम अगले महीने से। तो लोगों को खेती के ऊपर अगर प्रॉपरली नॉलेज दे और उसके ऊपर वो काम करे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। सर मेरे स्कूल से जो पहले 15 से 20 बच्चे पेरेंट्स के साथ बाहर जाते थे, तो अभी 4 साल से एक भी बच्चा मेरा बाहर नहीं जाता। और पेरेंट्स लोगों को भी यहाँ पे काम मिलने की वजह से उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उनका देख के और भी लोग इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। तो बस अभी यही ऐसा काम चलता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू सर। नहीं मेरा सर यही एक ये था इंटेंशन यहाँ भी बोलने के लिए कि एक इंसान जब अपनी एक जो स्टिपुलेटेड ड्यूटी होती है, आपकी प्राइमरी टीचिंग की थी, आपने अलग सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये क्यों करूं, और आपने जो जितने सारे बच्चे वहां पे रुके अभी उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें कुछ भी बाधा नहीं आ रही है। आई थिंक हैट्स ऑफ भाऊ साहब चास्कर जी के वजह से ही मेरे ये सब दोस्त बन गए। आई थिंक मेरे जो पूरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड है उनको बोलना चाहूंगा कि नेटवर्किंग जो हम बोलते हैं वो यही है। एक विनाताई की वजह से भाऊ साहब चास्कर मिले, भाऊ साहब चास्कर की वजह से जतिन साठे जी मिले, राहीबाई पोपेरे जब मुंबई आई थी, जब एबीपी माझा ने उनका इंटरव्यू लिया था आफ्टर गेटिंग अवार्ड ऑफ दिस रिकॉग्निशन फ्रॉम बीबीसी, वो टाइम में राहीबाई को भी मिला था। मेरे को वो ऐसे लग रहा था कि मैं बहनाबाई को मिल रहा हूँ। आई थिंक एक कंप्लीटली अनपढ़ स्त्री है ये देश की, जो इतने सिंपल वर्ड में पूरे लाइफ का फिलॉसफी बोल रही थी। और उसके बाद बाबू मोरे जी मिले। आई थिंक जो भी हमारे देश की ताकत है वही एग्रीकल्चर। सर जतिन सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे पास शरद मराठी सर आए थे जो चेयरमैन है टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स के आयुष मिनिस्ट्री के, और उन्होंने हमको ये आइडिया डाला था कि एग्रीकल्चर यू शुड लुक एट कन्वर्टिंग इनटू एग्री बिजनेस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म पे आप सब आ गए और ये कुछ एक्सचेंज हो गया। आप जरूर बाबू मोरे सर से जुड़ जाइए एंड उनका भी कुछ फायदा होगा। मीन टाइम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए सर,
एक क्वेश्चन आया है हमारे बहुत ही होनहार एल्यूमिनी जो अभी न्यू जर्सी से अमेरिका से ज्वाइन हुए हैं, उनको खेती में बहुत सारा इंटरेस्ट है, व्यास खन्ना करके। व्यास, आई विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली। व्यास। थैंक यू सो मच आभा। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं एक्चुअली हिंदी में बोलूंगा कि आपसे मिलने का अवसर मिला, जितिन सर और बाबू मोरे सर, आपकी स्टोरी सुन के इट इज वेरी इंस्पायरिंग। मैंने मतलब यही ऐसे सोचा था कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। और थैंक यू सो मच आभा, आपकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें ये ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में सुनने को मिला और इनका काम देखने के लिए मिला। आप हमारा एक्चुअली मैं RIT के एलुमनाई से जो एसोसिएटेड हूँ, हम लोग बिजनेस इनोवेशन पे ही काम कर रहे हैं। और हमारा भी फोकस ये है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनके लिए कुछ कर सकें और उनकी लाइफ को टच कर सकें और कुछ चीजें और चेंजेस बना सकें। और आप यही काम एक्चुअली साक्षात कर रहे हो और ये देखने को हमें मिल रहा है। एंड आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इतने बढ़िया हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि क्या हम लोग बैम्बू कल्टिवेशन के बारे में सोच सकते हैं क्या ऐसे रीजन्स में जहाँ पे पानी कम हो, या कुछ राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र के ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ट्राइबल लोगों को ये हेल्प कर सके बैम्बू ग्रो करने के लिए, और कॉटेज इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाए कि बैम्बू के चीजें बन सकें उससे। क्या बैम्बू कम पानी में ऐसे उग सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बाम्बू तो फॉरेस्ट्री प्लांट है और वो कहाँ पर भी आ सकता है। फॉरेस्ट प्लांट होने की वजह से उसको रेन फेड ही बताया जाता है, और वो जो भी रेन का वाटर होगा उसके ऊपर ही आएगा वो। तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। और फास्ट ग्रोइंग स्पेशीज हमने प्रमोट की है, जैसे कि टॉक्साई करके एक वैरायटी है हमारे पास, तो वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। 1-2 साल में वो 30 फीट तक बढ़ती है अगर उसको 2 बार उसका केयर किया जाए साल में। तो बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिसेस के ऊपर बाम्बू का कल्टीवेशन बढ़ सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि बाम्बू का अहम महत्व है, किसानों के लिए भी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी है। और सबसे बढ़िया बात यह है बाम्बू की कि अब उसको 1 साल के लिए अगर उसका केयर करेंगे तो सालों साल तक आपका केयर करेगा। ये बाम्बू का कैरेक्टर है। तो अब बाम्बू कहाँ पर भी हो सकता है सर, राजस्थान में भी कर सकते हैं आप इसको, महाराष्ट्र में तो कहीं भी हो सकता है। और बाम्बू की कई सारी वैरायटीज है हमारे पास, उसके नर्सरी भी बनाई है हमने। तो काफी सारा हम भी मिशन लेके आगे जा रहे हैं, बाम्बू का कल्टीवेशन बढ़ा है। और वेस्टलैंड बहुत बड़ा है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाए उसमें से। कई सारा बाम्बू हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम ये अपॉर्चुनिटी मान के आगे चले जाए। तो काफी स्कोप है, उसके बारे में हम डिटेल कर सकते हैं एक बार फिर से चर्चा। थैंक यू जतिन सर। प्रमोद गायकवाड़ जी ने एक क्वेश्चन पूछा है सर कि हम बायफ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली सर रोहित यार, मैं सर प्रमोद और मैं एक STGP NGO करके एक मुलुंड में है हमारा। तो हम 4 साल से एक्चुअली सोशल वर्क में काम करते हैं, जैसे कि सेक्टर से जॉब, वर्क, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो टुडे जो आपने सेशन दिया लाइवलीहुड का फॉर ट्राइबल पीपल्स, सो हम कैसे ज्वाइन हो सके, ज्वाइन कर सकते हैं बाय का मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन था एक्चुअली। अगर एज ए एनजीओ आपको ज्वाइन करना है, आपकी एनजीओ को टाइप करना है बाइफ के साथ, तो उसका एक MOU बनेगा जो हायर लेवल पे बनेगा। हम लोग तो अभी यहाँ बैठ के तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं यही गाइड करूंगा आपको कि आप लोग जैसे भी आपके दिमाग में है कोई मॉडल करना बाइफ के साथ। बाइफ कई सारे एक्टिविटीज करता है, कई सारे कंपोनेंट्स है बाइफ के। आप अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में है तो वो एक्टिविटीज आप बाइफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस भी ज्योग्राफी में करना है, बाइफ तो ऑलमोस्ट इंडिया में छाया है, तो आप इंडिया में कहाँ पर भी काम कर सकते हैं जहां पर बाइफ का प्रेजेंस है। और कंपोनेंट्स अगर देखे जाएंगे तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लाइवस्टॉक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कंपोनेंट्स में बाइफ काम करता है जो कि रूरल और ट्राइबल इंडिया से जुड़े हुए हैं।
तो आप कर सकते हैं बिल्कुल बाइफ के साथ काम। ग्रेट सर, हमारे एक सीनियर एल्यूमिनी है सचिन क्षीरसागर जी, जो एक जापानीज कंपनी में ऑपरेशन हेड है, उनको कुछ आपके साथ बात करना है। सचिन, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। सचिन, रोहित, कैन यू प्लीज चेक? He is unmute. Sachin, please unmute. Your voice is not audible. Sachin. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, उनको अनम्यूट करके। आई थिंक देयर आर सम रिलेटेड क्वेश्चंस अभी जो एक दो आए थे, उसमें से एक था फ्रॉम सानिया तांबुली। Sir, how can we stay connected with the work of BIAF related to all agriculture contributions? And और एक क्वेश्चन था सर, इंडिविजुअल फार्मर आपके साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बाइफ के वर्क के साथ। आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर भी आप रहते हो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। उस एरिया के प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो, उसके साथ कैसे एड्रेस करना है, उसके लिए बाइफ हमेशा आपके साथ रहेगा। और इंडिविजुअल के साथ आपको जुड़ना है तो आपको उसका माइक्रो लेवल प्लान करके आप जुड़ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप जुड़ सकते हैं या बाइफ को लेकर भी जुड़ सकती है। लेकिन जहाँ पे हमारा प्रेजेंस होता है वहां पे एक प्रोजेक्ट एरिया हम डिफाइन करते हैं पहले। वो प्रोजेक्ट एरिया में जितने भी विलेजेस लेते हैं उसका बेसलाइन सर्वे करके फिर आगे प्रोग्राम चला जाता है। इसलिए अगर नया कुछ एरिया हमें लेना है डेवलप करने के लिए तो उसका एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसका स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा और तब जाके आगे हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि बस आपको खुश करने के लिए मैं यहाँ से नहीं बोल सकता कि हाँ कर लेंगे, वहां भी काम कर लेंगे, वहां भी काम कर लेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम फोकस काम करेंगे, स्पॉन्सर भी हमारे साथ आएंगे वो उस एरिया में, तो जरूर काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। समस्या हल करने के लिए साथ बात कर सकते हैं सर, या किसके साथ इंटरनेट पे या आपकी वेबसाइट पे कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल, मेरा नंबर मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ, तो अब मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। सर आपका पहला वाला स्लाइड शेयर करेंगे तो आपके डिटेल्स है कॉन्टेक्ट उसमें, फर्स्ट स्लाइड, वो अच्छा रहेगा सर। यस यस। या मीन टाइम सचिन, आप वापस आए हो या आप बात कर सकते हो सचिन? नहीं, सचिन के कनेक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सचिन सर, हॅलो सचिन सर, एकदा डिस्कनेक्ट करून रिकनेक्ट करा। ओके, आय थिंक बाबू मोरे सरांना काहीतरी बोलायचं होतं। मोरे सर, तुम्ही बोलू शकता। मोरे सर, रोहित काय प्रॉब्लेम यायला लागलाय का? नाही सर, ऍक्च्युली क्लिअरली ऑडिबल आहे। बाबू मोरेंना ओके, बाबू मोरे सर, मी तुम्हाला अनम्यूट करायला हे केलंय, जरा तुम्हाला काय विचारायचं होतं का? ओके ओके सर, हा सर बोला। मला सर असं विचारायचं होतं, म्हणजे ह्या जी बिया आहेत वेगवेगळ्या पारंपरिक बिया ज्या असतात सीड हे केलेल्या, तर त्या मला इकडे माझ्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध कशा होऊ शकतात पालघरमध्ये, हा मला नितीन सरांना एक प्रश्न विचारायचा होता। दुसरं एक असं की इथं म्हणजे त्यांचं एक 10-12 लोकांबरोबर माझ्या पाड्यामध्ये ऑलरेडी काम चालू आहे, पण मला आणखीन काय असं वाटतं की तो होतकरू माझे शेतकरी आहेत की जे समजा जसं त्यांनी सांगितलं शेळी पालनाच्या संदर्भामध्ये आहे किंवा दुग्ध व्यवसायाच्या संदर्भामध्ये, त्याच्या अनुषंगाने आम्हाला काही भेटू शकतं का या बाजूला इकडे पालघरमध्ये? हो, अगदी तिथं बायफची टीम काम करते। संदीप बाकडे तिकडे माझे सहकारी आहेत, ते पण रिजनल हेड आहेत। आणि मी तुम्हाला विनंती करेल बाबू सर की तुम्ही काही सिलेक्टिव्ह विद्यार्थ्यांना घेऊन राईमावशींची बीज बँक दाखवायला घेऊन या। आपण सर्व मुलांना एक एक किट माझ्यातर्फे मी त्यांना भेट देईल बियाण्यांची, ज्याच्यात 40 प्रकारच्या विविध प्रकारच्या भाज्या आहेत, ते वाढू शकतात, मल्टिप्लाय करू शकतात आणि त्यांच्या भागात ही 40 पिकं जातील। यस, ही अपॉर्च्युनिटी आहे। यस सर, यस यस, नक्की या, तुमचं स्वागत आहे सर। थँक्यू सो मच।
गणेश पुजारी साहेबांना काहीतरी विचारायचं. गणेश पुजारी सर, आपण अनम्यूट करू शकता स्वतःला. हॅलो. हा पुजारी साहेब, गो अहेड, प्लीज गो अहेड. जतीन साहेबांना मला प्रश्न विचारायचा होता की माझ्याकडे एक 13 गुंठी जमीन आहे, तर तिथं फार दिवसाला काय पिकवलं नाही आहे, तर साहेब मला तुम्ही काय सजेस्ट करू शकाल? पाण्याचं जरा एवढा प्रॉब्लेम आहेच. कुठल्या एरियात आहे तुमची जमीन? शहरी भाग. शहरी भागात आहे. तिकडे तुम्ही न्यूट्रिशनल गार्डन उभी करू शकता, ज्याच्या माध्यमाने तुम्ही तुमच्या सोसायटीत किंवा आजूबाजूला त्याचं मार्केटिंग करून पण अर्निंग पण होऊ शकता आणि रेसिड्यू फ्री त्यांना सगळं देऊ शकता लोकांना, कारण शहरात आहे म्हणून सांगितलं मी. हॅलो. आयडियल किचन गार्डन डेव्हलप करू शकता तुम्ही तिथे. हॅलो. गणेश सर ऐकत आहे? Am I audible now? Yes. Sachin, please go ahead. अच्छा सर, आपके यहाँ पे अगर आपके फार्म को वहाँ पे आपने जो किया है प्रोग्राम ये उर्ली कंचन में, वहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं विथ योर प्रायर अपॉइंटमेंट? हाँ, कर सकते हो बिल्कुल. जहाँ भी बाम्बू का बेल्ट डेवलप किया है हमने, वहाँ पर आप विजिट कीजिए. वहाँ के जो टेक्निकल पर्सन है वो आपसे जुड़ जाएंगे. आप मेल फॉरवर्ड कीजिए मुझे, मैं आपको अभी करके दूंगा. ओके. क्योंकि मेरा भी एक 4 एकड़ लैंड है, वो मैं अभी अंडर डेवलपमेंट है मेरा. अच्छा. और जस्ट नियर द डैम साइड, तो वहां से वो मतलब लिफ्ट इरिगेशन वगैरह चालू है प्रोसेस उसका. अच्छा, कहाँ पर है? ये सातारा के पास है. ठीक है सर, ठीक है. सातारा में हमारी टीम है, उनसे जुड़वा सकता हूँ मैं आपको. ओके ओके सर. यस. अभी हमारे साथ प्रोफेसर महेश देशपांडे हैं. एक्चुअली उन्होंने भी अपना खेती में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है. देशपांडे सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा. देशपांडे सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? अब देशपांडे सर ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है. मतलब वो दालेम वगैरह जो है ना, खेती भी. अरे आपल्याला त्यांना अनम्यूट साठी मेसेज पाठवायला लागतो. महेश देशपांडे आहेत का? हाँ, महेश देशपांडे पाठवले. महेश देशपांडे सर, तुम्ही अनम्यूट करा. आणि मीन टाइम शिहाब, यू वांटेड टू आस्क क्वेश्चन. शिहाब. शिहाब. Shihab, can you please unmute yourself? Yes, Shihab. आणि काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय. ठीक आहे मंजूर, अजून कुठले क्वेश्चन आहेत का? नेक्स्ट सलमान पटेल ने एक विचारलं होतं, व्हॉट अबाउट द सलाइन लँड. मला पण ते काय मॉडेल, त्याच्यासाठी काय मॉडेल तयार केलं का? SALIN सलाइन लँड. जतीन सर, प्रश्न समजला नाही सर, आवाज आला नाही माझ्यापर्यंत. ते विचारतायत की सलाइन लँड कडे आपल्याला काय ऑप्शन्स आहेत का, खारफुटी असलेल्या जमिनीसाठी वगैरे? हो, आहेत. आपल्याकडे चांगले ऑप्शन आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही चारा पिकं, जे लाईव्ह स्टॉकला खूप गरजेचं आहे, तर चारा पिकं तुम्ही त्यात लावू शकता. बायफने त्याच्यामध्ये BN10 आणि BN11 नावाचे हायब्रिड नेपियर डेव्हलप केलेलं आहे. त्याचे स्टम्प्स तुम्ही लावू शकता, जे वेटलँड मध्ये येऊ शकतात. ओके 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 सर, मंजूर, जर सगळे क्वेश्चन संपले असतील तर कॅन वी रिक्वेस्ट रोहन टू प्लीज प्रेझेंट वोट ऑफ थँक्स. Abba, one more question it is there. Someone asked about the bamboo used in industry applications. Jatin sir, can you answer this question? आवाज नाही आला माझ्या. ऍक्च्युली सर एक क्वेश्चन असा आहे की
बांबू यूज इन इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन, बांबूचा यूज इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन मध्ये कुठे होऊ शकतो. आणि दुसरा एक आहे की जे आपण डेव्हलपमेंट करतो जसे की वाढी डेव्हलपमेंट किंवा कल्टिवेशन फार्मिंग, तर त्यामध्ये बायफ फायनान्शियली सपोर्ट करते का फार्मर्सला, किंवा इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कशी असू शकते? बायफ प्रोजेक्ट थ्रू इनपुट सप्लाय करतं, फायनान्शियल डायरेक्ट सपोर्ट करत नाही, कुठल्याच शेतकऱ्याला नाही करत, पण इन काइंड सपोर्ट सर्व राहतो. म्हणजे तुम्हाला बांबू लावायचं तर बांबूचे तुम्हाला सॅपलिंग्स दिले जातील, त्यासाठी लागणारे जे काय पॅकेज असतं, त्याला लागणारे मायक्रो फर्टिलायझर्स असतील किंवा बाकीचे इनपुट्स असतील ते आपण प्रोव्हाइड करतो शेतकऱ्यांना. कॅश सपोर्ट किंवा बाकीचे सपोर्ट आपण नाही देत शेतकऱ्यांना. तर मग हा फायनान्शियली सपोर्ट आपण कसा अचीव करतो, म्हणजे चॅलेंजेस काय येऊ शकतात त्यामध्ये? फायनान्शियल सपोर्ट साठी एक तर आपल्याला स्पॉन्सर पाहिजे चांगला स्ट्रॉंग, जो आपण प्रोजेक्ट लिहू त्याला सपोर्ट केला पाहिजे त्यांनी. समजा तुम्ही 100 एकरवरती बांबू लावायचं म्हणताय, त्यासाठी शेतकरी एकत्र आपण केले, तर त्यासाठी लागणारे जे काही पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस आहे ते आपण डिझाईन करून देऊ शकतो. त्यासाठी बाहेर तुम्हाला मदत करेल, प्रोजेक्ट लिहून द्यायला मदत करेल, पण त्याला स्पॉन्सर एक स्ट्रॉंग भेटला की आपण ते इम्प्लिमेंट करू शकतो स्कीम. ओके, मीन्स फर्स्ट स्टेप अशी राहील की आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे ट्रायबल एरिया, त्यांचे नीड्स, म्हणजे कोणते प्लांट्स आपण तिथे म्हणजे कल्टिवेशन करू शकतो, कोणते प्रोजेक्ट करू शकतो, प्रोजेक्ट प्रिपेअर करायचे, आणि त्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर वी कॅन इम्प्लिमेंट इट. यस यस सर. ओके. प्रमोद गायकवाड आहेत, त्याने एक हात वरती केलाय, काहीतरी क्वेश्चन विचारलं. प्रमोद गायकवाड, अनम्यूट युअरसेल्फ अँड आस्क. नमस्कार सर, प्रमोद गायकवाड बोलतो. आवाज येतोय? हो येतोय, आवाज येतोय सर. नमस्कार सर, माझा असा प्रश्न आहे की काही जमिनी असतात जिथे 2-3 वर्ष काहीच लागवड केली नाही, त्यानंतर तिथे बरेचसे पिकं घेतली तर त्यानंतर सुद्धा तिथे तण किंवा गवत जे असतं ते जास्त येत राहतं, आणि किती फवारणी वगैरे केली तर त्याचा इतका इफेक्टिव्ह यूज नाही होत. तर त्याच्यासाठी काही संस्थेमार्फत आपल्या काही प्रोग्राम राबवले गेलेत का, किंवा काही सोल्युशन्स आहेत का याच्यावरती? त्या जमिनीचा काय टायफ आहे त्याचा स्टडी करून तुम्हाला तुमच्या स्ट्रॅटेजी करावं लागतील. परंतु जर तुमची काही काळापूर्वी जर तुम्ही तिथं काही पिकं घेत होते आणि मधल्या काळात घेतले नाही आता परत घ्यायचे अशी कंडिशन असेल तर तुम्ही सन हॅम्प नावाचा जो प्रकार असतो हिरवळीच्या खतांचा, तो सन हॅम्पची पेरणी करा, तुमचं गवत नाहीसं होतं आणि तुमचं जमीन फर्टाईल पण होतं. हे दोन्ही गोष्टी त्यातून निष्पन्न होतात तुम्हाला. सन हॅम्प तिथं पेरा तुम्ही, सन हॅम्प मुळे तुमची जमीन फर्टाईल होईल आणि मग नंतर तुम्ही ते परत ऍग्रिकल्चर खाली आणा. थँक्यू सर. Great. Over to you, Rohan. Yes, sir. Yeah, we can go for vote of thanks. Mr. Rohan. Rohan, you are not audible. I'm audible? Yes. Sorry with the connection problem. Coming to an end of such an inspiring session, on behalf of Raha committee, I would like to thank Jatin Sati sir for spending his valuable time for motivating all the audience regarding the agricultural, and he spoke about the livelihood opportunities present in this sector in villages and rural and tribal areas in India. Secondly, I would like to thank all the audience, including my friends and faculty members, without whom the program would be just like flowers without petals. Thank you for listening us patiently. Before concluding our session, I would like to request all the audience to regularly attend all the sessions arranged by Raha, which are really going to help you in future. Thank you. Hereby I conclude the session is over. Thank you. Thank you all for joining this session. It was a really informative session today. Thank you, Jatin sir. Thank you all attendees. Thank you very much.